So from this lecture, we will discuss about the causes of cancer. Causes of cancer. And the causing agent of cancer are commonly known as carcinogens. Causing agents are commonly known as carcinogens. कार्सिनोजेंस जिसको बोला जाता है, जितने भी कैंसर कॉजिंग जो सब्सटेंस होते हैं और जिनको हम कॉजिंग एजेंट बोलते हैं, दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेंस को जो है या कॉजिंग एजेंट को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कार्सिनोजेंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। देयर आर 3 टाइप्स of carcinogens. One is the physical agent. The physical agent of carcinogens. Physical agents or carcinogens are what? They are the physically appeared or physical in nature. So under the physical agent or carcinogen, we will discuss about the radiations. Number of radiations falls under the physical carcinogen. ये सभी जो है जितने भी रेडिएशन होते हैं जो हार्मफुल रेज क्रिएट करते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल कार्सिनोजन। अब रेडिएशन में आप जो है 2 कैटेगरी पढ़ेंगे, एक जो है आयोनाइजिंग, अदर इज नॉन आयोनाइजिंग। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का 2 ग्रुप होता है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन से होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज कैंसर इन बॉडी। अंडर द आयोनाइजिंग द radiations are X-ray. Example of ionizing radiation is X-ray and gamma. These are the ionizing rays. Ionizing means the rays or radiations are found in ion form. ऐसे रेडिएशन जो आयनिक फॉर्म में होते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्स और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग radiation and the non-ionizing radiation is called ultraviolet rays. UV rays which comes from the sunlight. जो sunlight से rays, harmful rays release होते हैं, which transfer or reach to the earth after removing the ozone layer. Ozone layer को जो है ओजोन लेयर रिमूव होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोज होते हैं टू द अर्थ सरफेस। And due to ultraviolet radiation or exposure of ultraviolet radiation, we have discussed in environmental the effect of ozone layer depletion. Effect of ozone layer depletion के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं that ultraviolet radiation exposure cause skin cancer. ये जो है स्किन कैंसर कॉज करने का काम करता है। इसके अलावा एक्स रे और गामा रे, ये इसके भी एक्सपोजर की वजह से सेल के अंदर जो है डैमेज क्रिएट होता है, इन्फ्यूटेशन क्रिएट होता है जो कि कैंसर कॉज करता है। कैंसर कॉज करने का मीन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं किसी भी सेल से। उसके बाद वो सेल क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करना शुरू कर देते हैं। Radiations they are responsible to damage. Radiation damage the DNA of cells. ह्यूमन सेल के डीएनए को क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं रेडिएशन। डैमेज द डीएनए ऑफ सेल, सेल के डीएनए को ही ये डैमेज कर देते हैं। और ड्यू टू डैमेज ऑफ डीएनए द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बिकम्स रिमूव। और जब वो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाती है तब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना।
Now the next category of carcinogens. It is the chemical carcinogen. So chemical carcinogens or agent involves a number of chemicals, toxic chemicals, which are also responsible to remove the property of contact inhibition in human cell. ह्यूमन सेल में जो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के प्रॉपर्टी को रिमूव करने का काम कुछ केमिकल्स भी करते हैं. फॉर एग्जांपल केमिकल्स ऑफ टोबैको. Chemical present in tobacco, it is responsible to cause mouth cancer. Mouth cancer में के लिए जो chemical responsible होता है, which is present in tobacco. तो tobacco में जो chemical present होता है, nicotine. Nicotine is a chemical which is present in tobacco. As same as the other chemicals which are present in other substances are also responsible for causing cancer or cancerous, making cancerous use. Chemical carcinogens. These are the chemicals which are responsible to remove the property of contact inhibition. Now the third category is the biological agent or carcinogen. The biological agent or carcinogens involve the living cell or living organism which is responsible to remove the property of contact inhibition in human body cell. ह्यूमन बॉडी सेल में अगर कोई पर्टिकुलर सेल या लिविंग कंपोनेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको हम बायोलॉजिकल एजेंट और कार्सिनोजन की कैटेगरी में रखेंगे. एंड under the biological carcinogen, a number of viruses are responsible, or viruses which are responsible to form or create cancerous tumor. They are called oncogenic viruses. Oncogenic viruses. Especially the gene which is responsible to create tumor in human body. ह्यूमन बॉडी में जो ट्यूमर कॉज करने वाला जीन होता है, ट्यूमर कॉजिंग जीन, और ट्यूमर क्रिएटिंग जीन, इसको हम बोलते हैं ओंकोजीन. Tumor creating gene is known as oncogene, and if the gene which is present, if the oncogene present in viruses, it is known as the viral oncogene or oncogenic viruses. ऐसे वायरस को हम बोलते हैं. And if that virus infect any person, the person's body cell may becomes carcinogenic or becomes converted into cell without the property of contact inhibition, or cell with the ability of uncontrolled cell division में ये convert है. तो biological agent और carcinogens की कैटेगरी में आ रही है oncogenic viruses as well as oncogene which is also present in human body. oncogene जो है human body में भी present होता है, which becomes activate in certain condition. इस condition में ये gene जो है activate हो जाता है and lead to formation of tumor in body. Body में tumor create करता है. So this is all about the causes of cancer. Causes of cancer को three category में divide किया गया है: physical agent और carcinogen, chemical agent और carcinogen and biological agent. कार्सिनोजेंस को जो है ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये तीनों कैटेगरी आप एक्सप्लेन करें. अबाउट द डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. कैंसर detection and diagnosis. And the early detection and diagnosis, detection as well as diagnosis, it is very necessary for successful treatment of cancer. कैंसर के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए
कैंसर का अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड। अर्ली स्टेज में अगर कैंसर का डायग्नोसिस और डिटेक्शन हो जाता है तो ऐसे केस में कैंसर को पूरी तरह से सक्सेसफुल वे में ट्रीट किया जा सकता है। बट लेटर स्टेज में अगर इसको डायग्नोस या डिटेक्ट किया जाएगा तो इस सिचुएशन में इसका ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो बात करते हैं कि कौन कौन से मेजरमेंट यूज करते हैं टू डिटेक्ट और डायग्नोज कैंसर। तो कैंसर को डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इन्हीं टेस्ट के बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें से वन ऑफ द टेस्ट अवेलेबल इज नोन एज बायोप्सी। There are a number of category of diagnostic tests available. First basis of diagnosis is the biopsy. Biopsy. So what is biopsy? Biopsy is the histopathological study of the suspected tissue. ऐसे सस्पेक्ट टिश्यू इसमें सस्पेक्ट है कि इस टिश्यू में इस पार्ट में बॉडी के इस पार्ट में जो है कैंसर का सिम्टम अपीयर हो रहा है। तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एरिया का टिश्यू जो है उसको निकाल करके एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी विल टेक प्लेस। And after histopathological study, we can, if the doctor will find out any kind of changes related to the cancer, then the cancer will be diagnosed, and then after diagnosis, the treatment will take place. So, biopsy was the histopathological study of tissue. पैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज बायोप्सी, जिसमें जहाँ पर सस्पेक्टेड रीजन होता है कैंसर का उस रीजन से टिश्यू को छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा जो है काट करके निकाला जाता है और उसको स्टडी किया जाता है टू नो अबाउट द चेंजेस रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर से रिलेटेड चेंजेस को जानने। द अदर टेस्ट इन्वॉल्व इट इज द बोन मैरो। Other tests involve the blood marrow as well as blood protein. Bone marrow and blood tests involved in the case of leukemia. Leukemia is the cancer of blood. Blood cancer को जो है हम बोलते हैं leukemia. Especially in blood cancer or leukemia, the number of WBC becomes increased in bone marrow as well as blood. Blood और bone marrow में जो है नंबर ऑफ WBC क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है। तो इसी के नंबर को काउंट करने के लिए ये ब्लड और बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। इन सब ल्यूकेमिया वॉल लिविंग वॉल WBC काउंट इन बोन मैरो एज वेल एज ब्लड। ब्लड और बोन मैरो में जो है WBC को काउंट किया जाता है इन बोन मैरो एज वेल एज the blood test. In the case of leukemia, leukemia is the type of blood cancer. ब्लड कैंसर के केस में जो है ये टेस्ट इन्वॉल्व होता है फॉर डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टेस्ट इन्वॉल्व इट इज द रेडियोग्राफी। And radiography takes place by the use of X-ray. Use of X-ray involves radiography. Then, in similar way, the other test involves CT. CT scan जिसको हम बोलते हैं CT. The full form of CT is computed tomography. Computed tomography इसको हम CT शॉर्ट फॉर्म में CT स्कैन बोलते हैं। इट आल्सो यूज द एक्स-रे। एक्स-रे का यूज इसमें भी होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए भी एक्स-रे का यूज। द फिफ्थ वन इज द MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग।
रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो होता है, इसमें टर्म आया है मैग्नेटिक, मीन्स ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। हाई मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विद सम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को जो है इसमें यूज किया जाता है टू यूज ऑफ हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके जो है कैंसर के डिटेक्शन को परफॉर्म किया जाता है इन सस्पेक्ट रीजन, एंड स्पेशली दीज थ्री methods, that is radiography, CT, computed tomography and MRI, these together is responsible to detect cancer in internal organ। internal organ में जो कैंसर का डिटेक्शन होता है, डिटेक्ट कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के डिटेक्शन के लिए इंटरनल ऑर्गन में अगर सस्पेक्ट हो रहा है for the cancerous cell, so these are the tests are responsible to detect the cancer in suspected organ। And now the next is antibodies against cancer specific antigen, using antibodies against cancer specific antigen। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन का कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज को यूज करके टेस्ट किया जाता है, मींस कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाए गए हैं विच ओनली रिएक्ट टू द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर से रिलेटेड जो सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल जो होते हैं, वो एक स्पेशल एंटीजन का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीजन मीन्स a particular protein which is different from normal cell। normal cell से जो है, normal cell के प्रोटीन से वो प्रोटीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। that protein will act as the antigen which is not detected by our body immunity system से इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज क्रिएट करके रखा जाता है, उस एंटीबॉडीज से भी टेस्ट किया जा सकता है। If the antibodies with antigen interaction will take place, then the possibility of particular type of cancer will be increased। तो उस सिचुएशन में जो है the possible cancer will be, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी होगी the cancer cell will present in body, अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है तब। अब नहीं टेस्ट होता है, मीन्स एंटीबॉडीज एंटीजन इंटरेक्शन नहीं होता है, मीन्स नो कैंसर विल प्रेजेंट इन बॉडी। So this is the antibodies test। Next is the technique of molecular biology। technique of molecular biology। So technique of molecular biology involve it is to detect the gene of susceptibility to certain cancer। to detect gene for susceptibility। सो जीन कुछ केस में क्या होता है, पर्टिकुलर कैंसर का जीन इट इज ससेप्टेबल जीन जो है बॉडी में प्रेजेंट होता है। लाइक माउथ कैंसर माउथ कैंसर काज्ड बाय टोबैको से जो कैंसर कॉज होता है माउथ कैंसर, उसका जीन जिसके बॉडी में प्रेजेंट होगा उसी के बॉडी में जो है वो माउथ कैंसर क्रिएट होता है, अदरवाइज माउथ कैंसर नहीं होता है। मीन्स आप देखते हैं दैट मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज टोबैको इन देयर डेली लाइफ में जो है टोबैको यूज करते हैं, बट नॉट ऑल द पीपल सफर फ्रॉम द माउथ कैंसर। सभी पर्सन जो है माउथ कैंसर सफर नहीं करते, कुछ ही लोगों को माउथ कैंसर होता है। सो ऐसे लोगों में वो कौन सा चीज होता है जिसकी वजह से उनमें माउथ कैंसर हो जाता है? तो दैट वाज अ जीन फॉर माउथ कैंसर और जीन फॉर ससेप्टेबिलिटी टू द टोबैको। ओके,
अगर उसमें टोबैको एक्सपोज हो रहा है, ऐसे पर्सन जिसमें वो जीन है, ससेप्टेबिलिटी फॉर कैंसर ऑफ माउथ कैंसर की ससेप्टेबिलिटी अगर का जीन अगर किसी के बॉडी में है, तो वो जब भी टोबैको खाएगा तो उसमें कैंसर होगा, और जिसके पास वो ससेप्टेबिलिटी का जीन नहीं है उसमें माउथ कैंसर नहीं होगा। मीन्स आफ्टर फाइंडिंग or after detecting the gene for susceptibility of mouth cancer, we can remain prevented from cancer are due to exposure of tobacco. Tobacco के exposure से जो माउथ कैंसर होता है उससे बचा जा सकता है। So ये डिटेक्शन भी जो है इन्वॉल्व होता है टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ते हैं, या सॉरी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम किसी पर्टिकुलर जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं टू फाइंड आउट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर कैंसर। तो ये सारे जो है डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस प्रोसेस है फॉर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन ह्यूमन बीइंग में डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए ये सारे टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज किए जा सकते हैं। So treatment of cancer or first approach for treatment of cancer is what? Surgery. And surgery is done to remove the cancer causing tumor. Cancer causing tumor को जो है कट करके बॉडी से रिमूव करना, it is known as surgery. Involve removal of cancerous tumor. कैंसरस ट्यूमर को जो है सर्जिकल मेथड से रिमूव करना, ये कहलाता है सर्जरी, सर्जिकल। द सेकेंड approach for treatment of cancer involved is the radiotherapy. And the radiotherapy involves the exposure of the cancerous cell to a very toxic radiation. Toxic radiation, ऐसे रेडिएशन जो सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसे रेडिएशन में कैंसरस सेल को एक्सपोज किया जाता है। ओके, सो इट इन्वॉल्व exposure of cancerous cell, exposure of cancerous cell to highly toxic radiation to kill the cancerous cell. To kill cancerous cell, and this technique also involve the prevention of other neighbor cell. Neighboring cell जो है उसको prevent भी किया जाता है इस टेक्निक में, तो उसको कोई harmful effect नहीं होता है, केवल जो कैंसरस सेल होते हैं वही इसमें डिस्ट्रॉय होते हैं या किल किए जाते हैं। The third technique involved after radiography, the third technique involves the radiotherapy, sorry, chemotherapy. तीसरा टेक्निक और मेजर्स यूज किया जाता है, इट इज कीमोथेरेपी। एंड कीमोथेरेपी involve use of drug to kill the cancerous cell, to kill or destroy cancerous cell. कैंसरस सेल को किल या डिस्ट्रॉय करने के लिए जब हम ड्रग का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं, तो इसको सो कीमोथेरेपी इन्वॉल्व द यूज ऑफ ड्रग टू किल और डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब ड्रग का यूज करते हैं तो इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। बट कीमोथेरेपी हैज अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट ओवर द बॉडी ऑफ पेशेंट। बॉडी ऑफ कैंसरस पेशेंट पे कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं। these side effects involve as hair loss, anemia, loss of appetite, etc. तो आप देखते हैं कि मूवीज में या फिर अदर प्लेसेस में दिखाया जाता है जिसको कैंसर हुआ रहता है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट द हेयर बिकम्स लॉस्ट, मतलब वो उसको गंजा दिखाया जाता है। तो गंजा होने का मतलब ये जो है कीमोथेरेपी की वजह से वो साइड इफेक्ट होता है कि हेयर जो है पूरी तरह से लॉस हो जाता है, बट बाद में चलकर हेयर फिर से वो जो है रिकवर हो जाता है, बट इस टाइम हेयर लॉस दिखाई देता है मैक्सिमम टाइम। तो ये साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी। द नेक्स्ट थेरेपी इन्वॉल्व द इम्यूनोथेरेपी। Immunotherapy
तो देखिए कैंसर सेल की जो प्रॉपर्टी होती है, ओके, कैंसर के केस में क्या होता है दैट द कैंसरस सेल नॉट एक्सपोज टू और कैन नॉट डिटेक्टेड बाय आवर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा कैंसरस सेल जो है ये डिटेक्ट नहीं किए जाते हैं और जब डिटेक्शन नहीं होगा तब इम्यूनिटी सेल जो है इम्यूनिटी सिस्टम उनके ऊपर कोई वर्क एक्शन नहीं लेगा और एक्शन नहीं होने की वजह से दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय आवर इम्यूनिटी सिस्टम बट वी कैन एनहेंस द और वी कैन allow the immunity system to detect the cancerous cell or cancer in body by using some substances like alpha interferon. Okay, immunotherapy involves the use of alpha interferon to allow or to promote the immunity system to becomes detect and kill or destroy the cancerous tumor. तो कैंसरस ट्यूमर को डिटेक्ट और किल या डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है जब हम कोई सब्सटेंस यूज करते हैं लाइक अल्फा इंटरफेरॉन जो है कॉमनली यूज सब्सटेंस है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोथेरेपी ऑफ कैंसर। कैंसर के इम्यूनोथेरेपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये करता क्या है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एबल करता है ड्यू टू दिस द इम्यूनिटी